Hello my dear students. So let's start with our next topic, which is example number 4.2. I am reading the question. Pay attention. If the magnetic field is parallel to positive y-axis, so what can we say? See the diagram which is given in the book. The coordinates are given like this. This is the x-axis. This is the z-axis. And y-axis is going inside to the page. Ready? y-axis कहाँ पे जा रही है? वो अंदर जा रही है, inside the page. So वो ऐसे उन्होंने ऐसे दिखाया y. Actually means y is going inside. Plus y is inside and minus y is coming out. Ready? If the magnetic field is parallel to the positive y-axis, positive y-axis अंदर है and magnetic field उसके parallel है, means magnetic field is going inside to the page of paper. And the charged particle is moving along the positive x-axis. We have a charged particle, say it is a Q, and this charged particle is moving along the x-axis. Means your velocity has a direction, has a unit vector of I caret. ठीक है? Which way would the Lorentz force be for an electron, means negative charge, or on the proton? Means Lorentz force की direction कौन सी होगी for proton and for electron? Ready? So we know that when charged particle is moving in a magnetic field, the force is given by F is equal to Q into V cross B. F is equal to Q into V cross B. The force is given by this formula. Because here electric field is not present, so we cannot use the formula F is equal to Q into E plus V cross B. वो formula हम use नहीं कर सकते, यहाँ पे हम सिर्फ यही formula use कर सकते हैं. Now we can say F is equal to Q. Velocity की जगह हम लिख सकते हैं velocity which is in the I caret direction cross magnetic field. Magnetic field is inside और अंदर कौन सी direction है? plus y मतलब J caret. Ready? So we can say F is equal to Q VB I cross J, and we know that I cross J is given by K. Q VB I cross J is given by K. Hence we can say force is acting K caret. K caret means plus Z direction. Force is acting in plus Z direction for positive charge. For positive charge. And we can say the same value force QVB, but direction is opposite to previous one. Means force will act towards minus Z direction for नेगेटिव चार्ज. ये जब फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो ये फॉर्मूला में सारे डायरेक्शन रखने के बाद तुमको जो डायरेक्शन मिलेगी फाइनल डायरेक्शन, वो होगी पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन के लिए. इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा फॉर नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लिए. दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे लगेगा प्लस जेड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे लगेगा ये डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में. ठीक है, चलो. आई होप ऑल ऑफ यू कैन विजुअलाइज द प्रॉब्लम एंड एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. नेक्स्ट टॉपिक 4.3, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इंपॉर्टेंट टॉपिक.
Pay attention. See, we know that when there is a uniform magnetic field, right now the direction of this magnetic field is inside the page. Direction of this magnetic field is inside the page, and we can say this is the uniform magnetic field. This is the uniform magnetic field, and charged particle is moving in this field. So obviously we can use the formula F is equal to Q V cross B. That means force is equal to Q V B sine theta. Now my intention is that I want to make the value of this force maximum. मुझे ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम करनी है. क्या करना है? मुझे ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम करनी है. अब जो भी चार्ज है, सपोज कि 2 कूलम चार्ज है, वो 2 कूलम चार्ज यहां से कितना भी कहीं पे भी ट्रैवल करे, चार्ज चेंज होने वाला है नहीं. एंड वी आर थ्रोइंग अवर चार्ज पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वी क्या रखना है हमें? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी. एंड मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ही, मींस Q कांस्टेंट, V कांस्टेंट, B कांस्टेंट. तो क्या चेंज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी? व्हाट कैन वी चेंज इन रिगार्डिंग टू गेट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स? तो जो बचा वो है साइन थीटा. एंड वी नो दैट हियर थीटा इज एंगल बिटवीन V and B. Here theta is a angle between V and B. अगर मुझे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो ये सब तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो इंक्रीज नहीं कर सकते, बट हम थीटा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा? सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, और ये तब होती है जब थीटा होगा हमारा 90 डिग्री. सो इफ वी नीड दिस वैल्यू ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम, अगर हमें ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90. क्यू वी बी साइन 90. दैट मीन्स आपको यहां पे चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो करना है कि V और B एक दूसरे के पैरेलल हो, क्योंकि थीटा एंगल है बिटवीन V एंड B. सो इफ यू आर थ्रोइंग योर ऑब्जेक्ट, योर चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द B, तो ये केस में यहां पे साइन 90 बनेगा. साइन 90 होता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फोर्स की QVB. तो ये मैक्सिमम फोर्स से क्या होगा? Due to this maximum force, charge particle will perform uniform circular motion. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को अगर ऐसे फेंकते हो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, फॉर एग्जांपल कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर. और मैं चार्ज पार्टिकल को फेंक रहा हूं ऐसे. सी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड एंड चार्ज पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस. सो हियर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90. जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 बनता है तो फोर्स हमारा मैक्सिमम हो जाता है. ड्यू टू दिस फोर्स अवर चार्ज पार्टिकल विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मीन्स वो चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमेगा. क्या करेगा वो चार्ज पार्टिकल? से
गोल गोल घूमेगा। रेडी? चलो अब सेम फॉर्मूला सेम केस, बट मुझे फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ये जैसे मैक्सिमम फाइंड किए ना, वैसे मुझे फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। लेट्स सी अगेन, a uniform magnetic field which is inside the going inside the page, ऑब्वियसली यहां पे फॉर्मूला लगेगा F इजिकल टू क्यू इंटू V क्रॉस B, दैट मीन्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। F क्या हो जाएगा हमारा? क्यू वी बी साइन थीटा। सपोज मुझे फाइंड करनी है F की मिनिमम वैल्यू। मुझे क्या फाइंड करना है? फोर्स की मिनिमम वैल्यू। अब फोर्स की मिनिमम वैल्यू मतलब साइन की मिनिमम वैल्यू। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की मिनिमम वैल्यू होती है साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये साइन की मिनिमम वैल्यू होती है। तो जब साइन 0 डाल दोगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहां पे थीटा 0 है, मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो व्हेन V इज पैरेलल टू B, नेट फोर्स विल बिकम 0। तो वो केस में चार्ज पार्टिकल में कभी भी फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा? अगर चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया है, सॉरी इनसाइड, अगर चार्ज पार्टिकल को हमने अंदर ऐसे वेलोसिटी दे रखी है इनसाइड, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तो वो केस में V और B के बीच में एंगल क्या बन जाएगा? 0। दैट मीन्स माई टोटल फोर्स इज 0। टोटल फोर्स इज 0, दैट मीन्स नो एक्सेलरेशन। नो फोर्स मीन्स नो एक्सेलरेशन, मीन्स जो चार्ज पार्टिकल तुमने जो वेलोसिटी से फेंका है उसी वेलोसिटी से वो ट्रैवल करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। नो एक्सेलरेशन मीन्स our charge particle will have same velocity। सेम मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, उतनी ही वेलोसिटी से वो जाता ही जाएगा। मतलब यहां पे वो करेगा लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। कौन? चार्ज पार्टिकल लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और अगर मैं चार्ज पार्टिकल को ऐसे ही फेंकता हूं, B और V सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0, तो फोर्स 0, तो ये ऐसे ही जाएगा, चार्ज पार्टिकल लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, सीधे सीधा। सो यहां पे दो चीजें हो गई। क्या दो चीजें हो गई? देखो, अगर चार्ज पार्टिकल को हम 90 डिग्री से फेंकते हैं, वेलोसिटी और B के बीच का एंगल अगर 90 बनता है, ये V परपेंडिकुलर B, तो सर्कुलर मोशन करेगा। V पैरेलल टू B करेंगे तो लीनियर मोशन करेगा। और ये लीनियर वाली जो मोशन है ना, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। नाउ व्हाट हैपेंस if I'm giving the velocity, देखो, suppose this is my magnetic field and I'm throwing my charge particle, I'm giving my charge particle a velocity like this. This is the velocity of my चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ इन दिस केस वी कैन से कि जो वेलोसिटी है ना,
वेलोसिटी ना तो मैग्नेटिक फील्ड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। मीन्स एंगल बिटवीन V एंड B इज नाइदर 90 नॉर 0, 0 भी नहीं है 90 भी नहीं, बीच का ही एक एंगल है। तो ये केस में क्या होगा, सपोज आई एम थ्रोइंग माई चार्ज पार्टिकल विथ एंगल थीटा, मतलब B के साथ थीटा जितने एंगल पे मैंने उसको थ्रो किया है। ये केस में वेलोसिटी के दो पार्ट होंगे, एक ये वाला पार्ट होगा V cos थीटा, और एक ये वाला पार्ट होगा V sin थीटा, V cos थीटा एंड V sin थीटा। रेडी? सो यहां पे दो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी के, V cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। सो हमें पता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते तो क्या होता है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। सो हियर ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म लीनियर मोशन ड्यू टू V cos theta which is parallel to magnetic field B। ठीक है, V cos थीटा को V पैरेलल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, V पैरेलल। कुछ रेफरेंस बुक में V cos थीटा लिखते हैं, कुछ बुक में V पैरेलल लिखते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में V पैरेलल लिया है, बट यहां पे ये भी तो है, V sin थीटा भी प्रेजेंट है। प्लस हियर ऑब्जेक्ट will also perform circular motion due to V sin theta which is perpendicular to magnetic field। मतलब ये V sin थीटा को हम V परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में परपेंडिकुलर लिखा है, बहुत सी रेफरेंस बुक में V sin थीटा लिखा है। सो इसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। मतलब यहां पे लीनियर और सर्कुलर दोनों टाइप के मोशन परफॉर्म होंगे। तो लीनियर और सर्कुलर मतलब ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है। तो ये दोनों को जब मर्ज करेंगे तो कौन सा शेप बनेगा, ऐसा होगा, गोल भी घूमता जाएगा, आगे भी जाएगा, गोल भी घूमेगा, आगे भी जाएगा। दिस टाइप ऑफ शेप ऑफ मोशन इज नोन एज अ हेलिकल शेप। क्या होगा, हेलिकल शेप। ठीक है, चलो नाउ हमने थ्योरी तो देख ली कि भाई कब सिर्फ सर्कुलर मोशन करेगा, कब सिर्फ लीनियर मोशन करेगा, और कब लीनियर प्लस सर्कुलर करेगा। बट अब हमें क्या करना है, इन सबके फॉर्मूला डिराइव करना है। मान लो कि ऑब्जेक्ट सिर्फ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओनली परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। रेडी? तो मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और V और B के बीच में एंगल है 90 डिग्री, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। नाउ इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन स्टैंडर्ड 11 बाहर लगेगा mv²/r और अंदर लगेगा हमारा qvb। सो हियर वी कैन राइट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम mv²/r is equal to qvb, which is given in your textbook equation number 4.5
4.5 के जस्ट ऊपर। मोस्ट आईएमपी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें से हम कितनी चीजें फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये पूछे कि भाई कितने रेडियस में ये घूम रहा है, फाइंड द रेडियस, तो यहां से स्टार्ट करना है। mv² r इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहां पे मैं लिख रहा हूं mv² r इज इक्वल टू क्यू वी बी। वी कट कर लो और r को सब्जेक्ट बनाओ, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv/क्यू बी। सो यहां से हमें मिल जाएगा रेडियस। ठीक है, चलो फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूं, mv² r इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, मान लो अगर फिर से चलो मैं ये v कट कर देता हूं और v को सब्जेक्ट बनाता हूं, क्यू बी आर बाय एम। हमें वेलोसिटी मिल गई। भाई कितनी वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे। पुट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या करना है, हमें v की जगह आर ओमेगा रखना है। आर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम। आर कैंसिल, सो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम। सो अगर पूछे कि भी कितनी रेडियस में गोल घूम रहा है, तो भी mv² r इज इक्वल टू क्यू वी बी से हो जाएगा। कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो भी मिल जाएगा mv² r इज इक्वल टू क्यू वी बी। इसी को फर्दर सॉल्व करोगे और पूछे कि भाई कितनी एंगुलर वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो भी हो वो दोनों एक ही है। तो ये इसमें से भी एक और पार्ट होगा। वापिस मैं लिख रहा हूं mv² r इज इक्वल टू क्यू वी बी। आर को ऊपर ले जाओ, सो mv² इज इक्वल टू क्यू वी बी आर। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/2। 1/2 mv² मीन्स काइनेटिक एनर्जी, 1/2 क्यू वी बी आर। कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर सकते हैं। सो सर्कुलर मोशन, व्हेन अवर चार्ज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ओनली सर्कुलर मोशन, तो mv² r इज इक्वल टू क्यू वी बी कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। ये कुछ भी याद नहीं रखोगे ना, पर इसको सॉल्व करना सीख जाओगे तो इसी में से ही सब कुछ बनेगा। यह है तुम्हारा इक्वेशन 4.5। ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम, यह है तुम्हारा इक्वेशन 4.6। ठीक है, चलो इसमें से भी दो चीज हो सकती हैं। ओमेगा की जगह रखे 2π/t इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम। सो हमें t मिल सकता है। t क्या होगा, 2πm/क्यू बी। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम ऑफ सर्कुलर मोशन। एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो पीरियोडिक टाइम है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको याद रखना। ठीक है, अगर मैं ओमेगा की जगह रखूं 2πf, वेयर f इज अ फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की जगह 2πf रखो क्यू बी बाय एम, तो f इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कुछ कुछ बुक में फ्रीक्वेंसी को f लिखते हैं, कुछ कुछ बुक में न्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, न्यू। सो हमारी एनसीईआरटी में फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखते हैं, क्यू बी बाय 2πm। रेडी, तो हमारी बुक में इक्वेशन 4.6a ये दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम। तो ये पूरे के पूरे इक्वेशंस मैंने आपको ड्रॉ करना सिखा दी, क्या कैसे और फाइंड होता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए। लीनियर मोशन के लिए क्या होता है,
तो लीनियर मोशन के लिए कुछ नहीं, सिंपल, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, सिंपल, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बट हमारे केस में हमें जो फाइंड करना है, लास्ट वाला केस जिसमें लीनियर और सर्कुलर दोनों होते हैं, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें हम फाइंड करेंगे पिच, PITCH, पिच। व्हाट इज पिच बेसिकली? सो पिच इज अ टाइप ऑफ लीनियर डिस्टेंस। लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली। Pitch is a linear distance covered in capital T। मतलब कैपिटल T मतलब पीरियोडिक टाइम, टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल। एक सर्कल कंप्लीट होगा, जैसे कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, सपोज ये फिंगर है, वहां पे चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो देखो, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, उसके लिए टाइम लग रहा है कैपिटल T। तब तक उसने जो लीनियर डिस्टेंस कवर किया है, एक सर्कल कंप्लीट करेगा तब तक वो लीनियर डिस्टेंस भी कवर करेगा ना। सो पिच इज अ लीनियर डिस्टेंस विच इज कवर्ड इन कैपिटल T टाइम। एक सर्कल कंप्लीट करते करते वो जो लीनियर डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं पिच। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस पिच P? पिच इज डिनोटेड बाय P। सो ये तो बेसिकली तो लीनियर डिस्टेंस है। लीनियर डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि लीनियर डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो पिच भी लीनियर डिस्टेंस है, तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है हमारा, पिच, और कितने टाइम में, कैपिटल T टाइम में। सो ये लीनियर डिस्टेंस है। लीनियर डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, V पैरेलल। लीनियर डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, V पैरेलल। तो यहां पे मैंने लिखा है V पैरेलल। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड पिच इज इक्वल टू V पैरेलल इंटू T। T को यहां पे ले जाओ, और T की फॉर्मूला क्या है, तो T की फॉर्मूला अभी मैंने प्रूव की थी, 2πm/QB। तो ये T की वैल्यू यहां पे डाल दो। सो पिच P इज इक्वल टू V पैरेलल, और T की जगह डाल दो 2πm/QB। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ पिच, इक्वेशन 4.6b। रेडी? चलो, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। थियरी इंपॉर्टेंट है, लेंदी है, बट इजी है। आप वीडियो को अच्छे से पॉज, 5 मिनट का वीडियो देखो, समझो, नोट डाउन करो, पॉज 5 मिनट का देखो, नोट करो। बहुत इजी थियरी, बट बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक और थियरी आएगी, देखो पेज नंबर 140 पे, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थियरी, लेकिन कब सॉल्व कर पाओगे, जब ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आपके यही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो साइक्लोट्रॉन और आगे की सारी थ्योरीज पॉसिबल ही नहीं है कि आपको समझ में आए। रेडी? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट। रीड ऑल द लाइन्स वन बाय वन, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।